Welcome to the accountancy class. Today we will discuss a practical question based on written down value method of depreciation in which the asset is purchased but the payment is made in installment. So with the help of this practical question we will learn how to charge depreciation when payment for the asset is made in installment. So let us see. Here is the question. Sushma Limited purchased a plant on 1st April 2015 for rupees 2,40,000. So on 1st April 2015, Sushma Limited has purchased a plant for 2,40,000. It bought another plant on 1st July 2016 for rupees 1,60,000. दूसरा प्लांट एक और खरीद लिया 1st जुलाई 2016 को 1,60,000 रुपीज का. On 1st January 2018, plant bought on 1st April 2015 was sold for rupees 1,60,000. 1st January 2018 को जो फर्स्ट प्लांट था that Sushma Limited has purchased on 1st April 2015 was sold for 1,60,000. उसको 1,60,000 में सेल कर दिया. And a fresh plant was purchased on the same date. और एक और प्लांट परचेज कर लिया. पेमेंट ऑफ दिस प्लांट, अब जो नया प्लांट परचेज किया है उस प्लांट का पेमेंट कैसे होगा? 1st जनवरी 2018 को 40,000 रुपीज का, 1st जनवरी 2019 को 48,000 रुपीज का एंड 1st जनवरी 2020 को 44,000 रुपीज. फर्दर some more information is given to us. Payment made in 2019 and 20, जो पेमेंट हमने 2019 और 20 में किया है, include interest of rupees 8,000 and 4,000 respectively. तो 2019 में 8,000, इस 48,000 रुपीज में 8,000 इंटरेस्ट भी इंक्लूड है. और जो पेमेंट हमने 1st जनवरी 2020 को किया है उसमें 4,000 रुपीज इंटरेस्ट के इंक्लूड है. तो मीन्स जो इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है वो विद इंटरेस्ट पे की जा रही है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम. डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम. ओके. ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मीन्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड वी हैव टू यूज. शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years. 3 years का हमें प्लांट अकाउंट शो करना है. Ended 31st March 2016 to 31st March 2018. जो कब एंड हो रहे हैं? 31st March 2016 से 31st March 2018 तक है. So let us prepare a summary first कि when we have purchased the plant and when Sushma Limited has sold the plant. So let us see. On 1st April 2015, first plant was purchased for 2,40,000. सेकेंड प्लांट परचेज हुआ 1st अप्रैल 2016 को रुपीज 1,60,000 रुपीज का. और 1st जनवरी 2018 को 1,60,000 का प्लांट सेल कर दिया गया. अब कौन सा प्लांट सेल कर दिया? कि जो हमारा फर्स्ट प्लांट था ना, ये वाला सेल हो गया. अब बिसाइड्स दिस 1st जनवरी 2018 को एक और प्लांट परचेज किया था जिसका पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट में. उसको कैसे करेंगे ये हम वर्किंग नोट्स के थ्रू देखेंगे. हमारे ईयर्स कौन से बनेंगे? 1st अप्रैल 2015 से 31st मार्च 2016, 1st अप्रैल 2016 से 31st मार्च 2017 और 1st अप्रैल 2017 से 31st मार्च 2018. ये 3 years हमारे बनेंगे. 3 years का ही हमें प्लांट अकाउंट शो करना है. तो हम प्लांट अकाउंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे. तो प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद हम एंट्री स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने जो प्लांट खरीदा है वो 1st अप्रैल 2015 को परचेज किया है. तो 2015 अप्रैल 1st टू बैंक अकाउंट
ये फर्स्ट प्लांट परचेज कर लिया, ये हमने मेंशन कर दिया फर्स्ट प्लांट है ये, फॉर 2,40,000 रुपीज। इसके बाद नथिंग इज गिवन, सो 2016 मार्च 31 को हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करेंगे तो वी विल चार्ज अ डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाउ मच डेप्रिसिएशन वी विल चार्ज? Because this asset we have used April to March, for the complete year we have used, so we will charge depreciation for 1 year. The depreciation will be rupees 2,40,000 into how much? Rate of depreciation is 10%. So depreciation will be how much? It will be 24,000 rupees. Now we will calculate the balance by balance CD. Balance will be 2,40,000 minus 24,000. This will be the balance. So 2,40,000 minus 24,000 will be equal to 2,16,000. Okay. Then after that, what we will do? We will do the total of both sides. What will be the total? This side total is 2,40,000 and 24 plus 2,16,000. This side is also total 2,40,000. Okay. Now second year. In second year, what we have done? In second year, we have purchased one more plant. So let us see. Second year will start 2016 April 1. First of all, we will brought down the balance to balance BD. Balance is 2,16,000. Now in this year, July 1st, one more plant is purchased to bank account. This is second plant and it is being purchased for 1,60,000. इसको 1,60,000 में परचेज किया. Now at the end of the year, इस ईयर का एंड कब होगा? 2017 मार्च 31 को. डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों प्लांट्स पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट. फर्स्ट प्लांट की वैल्यू कितनी है? 2,16,000. तो 2,16,000 इंटू 10%, 21,600. ओके. सेकंड प्लांट, सेकंड प्लांट हमने परचेज किया है जुलाई 1 को. तो जुलाई 1 से मार्च 31 तक कितने मंथ्स हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 9 मंथ्स. तो हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो कैसे चार्ज करेंगे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 1,60,000 इंटू 10% इंटू 9/12. So let us do the calculation. 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 4 4 ja 60. So it will be how much? 12,000 rupees. It is for 9 months. Total depreciation 33,600. Now on March 31st, we will calculate the balance by balance
CD. Balance of first plant, balance of second plant. Now balance of first plant will be 2,16,000 minus 21,600. This will be the balance of first plant. So when we will minus it, we will get 1,94,400. Second plant, balance will be 1,60,000 minus 12,000 depreciation. So what we will get? 1,60,000 minus 12, 1,48,000. So total will be 3,42,400. Now final total both sides. This side total is 3,76,000. This side 3,76,000. Second year is completed. Now in third year. So when the third year will start? Third year will start 2017 April 1st. First of all, we brought down the balance to balance BD. Balance of first plant, balance of second plant. Balance of first plant is 1,94,400. Balance of second plant is 1,48,000. Total is 3,42,400. Now, in this year, first plant is being sold. First plant सेल हो गया. कब सेल हुआ है? 1 जनवरी 2018 को. मीन्स अकाउंट्स क्लोज होने से पहले ही ये सेल हो गया, जनवरी 1 को. सो बाय बैंक अकाउंट. ये कौन सा प्लांट सेल कर रहे हैं हम? फर्स्ट प्लांट सेल कर रहे हैं. ये कितने में सेल हुआ? 1,60,000 रुपीज में सेल हुआ. ठीक है. अब जब इसको सेल किया तब बिजनेस ने इसको कुछ ये टाइम तो यूज किया है. अप्रैल 1 से लेकर 31 दिसंबर तक इसको यूज किया. जनवरी 1 को तो क्योंकि ये सेल हो गया, तो कितने मंथ्स हुए ये हमें देखना है. तो उस पर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे? देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो उस पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम. तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 9 मंथ्स का. किस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन? अब डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? डेप्रिसिएशन के लिए हम वैल्यू कंसीडर करेंगे इसका बैलेंस 1,94,400 इंटू 10% इंटू 9/12. इसको सोल्व कर लेंगे. 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 0. सो इस पे कितना डेप्रिसिएशन बनेगा? 4,860 इंटू 3. डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 24 और 125, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 14,580 रुपीज. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी कि जब ये फर्स्ट प्लांट सेल हुआ तब कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ.
उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो लेट्स प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे पहले हम। जो प्लांट सेल किया उसकी 1 अप्रैल 2017 को क्या वैल्यू थी, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। सो बैलेंस ऑफ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2017। और ये कौन सा प्लांट है हमारा, फर्स्ट प्लांट है। बैलेंस ऑफ फर्स्ट प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2017 क्या वैल्यू थी इसकी, इसकी वैल्यू थी 1,94,400 लेस। इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्योंकि कुछ मंथ्स तो ये बिजनेस में यूज हुआ है। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, इस पे चार्ज किया 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, 14,580। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर वी विल गेट 1,79,820। तो इसकी वैल्यू थी 1,79,820। लेकिन ये सेल कितने में हुआ, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, इसका सेलिंग प्राइस है 1,60,000। तो कम प्राइस पे सेल हुआ, तो कितना लॉस हुआ बिजनेस को, 19,820 रुपीज का लॉस हुआ। दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, लॉस कैलकुलेट कर लिया अब हमने। अब इस लॉस को हम क्या शो करेंगे, प्लांट अकाउंट में शो करेंगे। किस साइड शो करेंगे, वी विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड। एंट्री विल बी January 1st by loss on sale of plant account. How much, 19,820। अब फर्स्ट प्लांट तो सेल हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ईयर में एक और प्लांट भी परचेज किया है। अब देखिए उस प्लांट के बारे में क्या गिवन है कि उस प्लांट का जो पेमेंट है वो 1 जनवरी 2018 को 40,000 किया गया पेमेंट, 1 जनवरी 2019 को 48,000 किया गया है, और 1 जनवरी 2020 को 44,000 किया गया। अब इसके अंदर हमें एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है कि जो हमने पेमेंट 2019 और 20 को की है उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो देखिए इसके लिए हम पहले एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट परचेज्ड ऑन January 1st 2018, क्या कॉस्ट थी उसकी। अब देखिए पेमेंट हमने कब कब किया है, एक तो हमने उसी टाइम पेमेंट कर दिया, एक तो जब हमने परचेज किया है। कितना परचेज किया है हमने, कितना पेमेंट किया है उस टाइम, हमने 40,000 पेमेंट किया है। ठीक है, तो 40,000 तो उसी सेम टाइम ही पेमेंट हो गया था। इसके बाद हमने जो पेमेंट किया है ऐड कर देंगे उसमें, क्या ऐड करेंगे, जो 48,000 रुपीज है नेक्स्ट ईयर पे कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, वो इंटरेस्ट हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करेंगे, उसको हम सेपरेट कर देंगे उसमें से,
माइनस कर देंगे। तो 48,000 माइनस 8,000 कितना हुआ? 40,000। इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने थर्ड ईयर में पेमेंट किया है कितना? 44,000। इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है इसके अंदर? 4,000 रुपीज़ इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो उसको भी रिड्यूस कर देंगे हम, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो कैसा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट क्या हुई? 1,20,000 हुई। सो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे थर्ड प्लांट पर, उसके लिए कॉस्ट क्या कंसीडर करेंगे? 1,20,000 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 40,000 पे किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ओनली 40,000 पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है। उसकी टोटल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, चाहे वो पे किया है चाहे पे नहीं किया है। तो लेट अस सी हाउ वी विल शो इट इन द अकाउंट। On 1st January, we have purchased the third plant. So here we will write to bank account. We will mention here 3. कितने का परचेज किया है हमने? 120 का परचेज किया है, 1,20,000 का, लेकिन पेमेंट कितना हुआ है? 40,000 पेमेंट हुआ है। तो बैंक अकाउंट में हम दिखा देंगे 40,000। अभी 80,000 पे करना रहता है, अभी पेंडिंग है। तो जब तक हम वो पे नहीं कर देता बिजनेस उसे, वो क्या है बिजनेस के लिए? क्रेडिटर्स है। और कैसे क्रेडिटर्स है? क्रेडिटर्स फॉर प्लांट है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 पे करने के बाद 80,000 इज लेफ्ट। 80,000 वी विल ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स फॉर प्लांट अकाउंट, क्योंकि अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। इन फ्यूचर वी विल मेक द पेमेंट। आफ्टर दैट वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे? सेकंड प्लांट पर और थर्ड प्लांट पर चार्ज करेंगे। सेकंड प्लांट का बैलेंस कितना है? 1,48,000। 1,48,000 इंटू 10%, 14,800। और जो सेकंड प्लांट है, एज आई टोल्ड यू, हम टोटल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 इंटू 10%। और कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया हमने? जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए। तो 1,20,000 इंटू 10% इंटू 3/12। तो व्हेन वी विल सोल्व इट, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 3,000। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 17,800। नाउ वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्लांट। उसका बैलेंस कैलकुलेट करना है हमें। सेकंड प्लांट, क्योंकि फर्स्ट प्लांट तो सेल हो चुका है, उसका तो कोई बैलेंस होगा नहीं। तो सेकंड प्लांट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,48,000 जो बैलेंस बिगिनिंग में था माइनस डेप्रिसिएशन। 1,48,000 माइनस 14,800 कितना आया? 1,33,200 बैलेंस हो गया। और जो थर्ड प्लांट है उसकी भी अब टोटल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। 40,000 कंसीडर नहीं करेंगे, हम टोटल कॉस्ट लेंगे 1,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने? 3,000 माइनस 3,000। इसका बैलेंस आ गया 1,17,000। टोटल कर देंगे 1,33,000, 1,33,200 प्लस 1,17,000, ये आ गया 2,50,200। इसके बाद बोथ साइड फाइनल टोटल लगा देंगे। जब हम फाइनल टोटल करेंगे तो वी विल गेट 4,62,400, 4,62,004। तो लाइक दिस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन।